Hi, it's been almost more than 2 months. I honestly didn't know how to come back and pick up this camera and film it again. Every day I thought I will shoot tomorrow, and then tomorrow became next week, and then next week became next month. And in fact, I even remembered that I once picked up the camera, did my shoot, but I never edited it because I lost the flow of it. Those who know me, hi, my name is Akruti, and welcome to my channel. I am here to update you on my real life, what is going on, and it's a very real talk kind of a video. I want to be very honest before I start posting regularly on my channel. So, you can see it by my voice. I'm shaking right now because all my confidence I've lost. I don't know if it is right to say here, but it's YouTube, so we get to be real, right? Also, because after this video, I'm going to a satsang. My life has changed, transformed, and lot of things have been happening lately. So I'll be getting ready and giving you my life update. So stay with me. As of now, I've prepped my skin using the moisturizer, using this Bioderma Atoderm moisturizer is the best moisturizer for my dry skin, and I've topped it up with this Forest Essential. It's a night cream though, but I use it as a primer also because it's very moisturizing and it's very non-sticky. It's little expensive, but it's worth it. So it's called Transformative Saundarya Night Cream with 24K gold. I don't know if that's true, but it works well for me. So whatever the products that I'm using in this video, I'll be linking down in the description below. You can go and check them out. I think my last vlog was about Jordan's first trek, or I don't know, something in the month of क्या आता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 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 तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इस 2026 में. सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो आई एम अ कैबिन क्रू. मैं बताना चाहूँगी, एक सेकेंड, मैं मिरर लाना भूल गई हूँ तो मैं इधर देख के लगा लेती हूँ पहले. सो आई एम अप्लाइंग द कंसीलर राइट नाउ. मैं यही सारे मेकअप यूज़ करती हूँ अगर मुझे कहीं भी जाना होता है तो, even on my flights, because this concealer is the best. I've been using it since 5-6 years now. कैबिन क्रू का जो लाइफ होता है उसमें हम होप करते हैं कि इट्स बेटर टू सर्व वाटर एंड टी rather than facing this real time emergency situations. And got to on May 5th, something really worst happened. Uh, it was horrible, and I don't think I'm allowed to talk about it in a brief, but it was all over the social media. Being the lead of the flight has the entire responsibility of my passengers as well as my crew, and in fact even the cockpit. So I am the one who is supposed to take the wise decision in that situation. I am glad that we all were very good with our work. हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया एंड हमने उससे निकल गए अब. बट it was little traumatizing for me, and more than me, it was for my parents and my husband, my family members. I couldn't even pick up my mother's call. My mother is a social media freak. She just keeps on scrolling. So she was the first person who called me up. My friend Deepak, you would have seen him in my vlogs. He called me up
Meanwhile, I was just processing कि क्या हो रहा है, because Deepak also works in aviation, so I was able to tell him everything. I called my husband that I won't be able to come, to update that I'll be not coming home soon. I'll be coming around at night. So इतनी बात हुई थी, और उसके बाद में I couldn't even pick up my mama's call. मैं मम्मी को क्या जवाब दूँ कि ये जॉब मैंने खुद से चुनी है, ये जॉब मैं खुद की खुशी के लिए करती हूँ, ये जॉब मैं आई लव इट, इसीलिए मैं करती हूँ. ये जब सिचुएशन हो रहा था, ये दिस वॉज ओकेश बिकॉज I had to be strong during this entire situation to pretend that yeah, everything is fine, everything, and I am in general a person like that. If any situation, I love working under pressure, so ऐसा कुछ हो जाता है तब तो मैं बहुत ही strong बन जाती हूँ कि मतलब I'll see it all. तो मैं ऐसे थी. My father-in-law, he loves me a lot, I love him a lot, and he got to know, and he was like, I want to come and see you. So we told him that it's not required, you can stay there. He asked my husband to book a cab. He denied for it कि अभी मत आओ आप, सब ठीक है, सब ठीक है. But he somehow was able to book the cab, and वो आए घर पे मुझे देखने. एक दिन वो पूरा रुके, like one day he stayed here at my place, and then he went back. These things, like it took a week for the investigations. जब भी एविएशन में कुछ होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लाइक चेक करना पड़ता है कि कैसे क्या हुआ था, एंड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं. तो इन सब चीज़ों को आई थिंक हमें 4 दिन लग गए थे. 4 दिन के बाद दे गेव अस 2 days ऑफ ऑफ. The first day of my off, it was a lunch time. Me and my husband, we were sitting, and हमने लंच किया ही था जस्ट, और हमने एक मूवी बुक की थी, माइकल. उस टाइम पे आई थी माइकल मूवी, तो हमने वो बुक की थी. तो और हम बैठे ही थे, और हमारे पास गाड़ी नहीं थी कि हम कहीं ट्रैवल कर पाएँ, बिकॉज़ हमारी गाड़ी सर्विसिंग में गई हुई थी. तो अभी हम लंच करके बुक करके बैठे ही थे, मूवी बुक करके, एंड मीनवाइल वी गॉट अ कॉल कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई है. तो यहाँ से हमें 1-1.5 घंटा लगता है. हम जाएं कैसे, क्योंकि हमारे पास तो गाड़ी नहीं थी. तो फिर हमने क्या किया, हमने केयर में कॉल किया, टाटा मोटर्स को कॉल किया, एंड देन वी वर लाइक, आप हमारी गाड़ी जैसे कंडीशन में है वैसे ही दे दो. हम लिटरली कैब बुक की, कपड़े भी कुछ रखे नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था. लिटरली हम टाटा मोटर्स पे गए हैं, और हमने उन्हें बोला है कि आप गेट पे ही हमें दे दो हमारी गाड़ी, और हमने पेमेंट भी लिटरली गेट पे ही किया है. ठीक है, हमने लिटरली पेमेंट गेट पे किया है, और हम गाड़ी लेके निकले हैं, और हमें कोई बता नहीं रहा है क्योंकि वी वर ट्रैवलिंग. सो नोबडी इज़ टेलिंग अस कि एक्चुअली हुआ क्या है. एवरीबडी इज़ टेलिंग कि पापा ठीक है, पापा ठीक है. जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, देन वी गॉट टू नो दैट उनको स्टंट डाला है, बिकॉज ही हैड एन हार्ट अटैक, एंड ही वॉज ऑल अलोन व्हेन ही हैड एन हार्ट अटैक. So, watching him in that situation for me was terrifying, and we all were traumatized. जो मेरा फ्लाइट का सीन हुआ था वो मैं भूल गई. आई couldn't even process कि मेरे साथ कुछ हुआ, एंड बैक टू पापा को ऐसा कुछ हो गया, एंड पापा वॉज द ओनली वन जो मेरे को देखने आए थे कि इफ़ आई एम डूइंग वेल. And he was in such a situation, I couldn't even believe it कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. मुझे मेरी आवाज़ ही ऐसी लग रही है ना. हमेशा मैं इस चैनल पे बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड करती हूँ, बट आज मुझे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो से मोर कॉन्फिडेंटली साउंड करूँ. उस टाइम पे पापा को उन्होंने हॉस्पिटल में रखा
ऑलमोस्ट कितना 2 दिन उन्होंने पापा को हॉस्पिटल में रखा एंड देन डॉक्टर एडवाइज्ड अबाउट द डाइट्स एंड एवरीथिंग एंड देन एवरीथिंग वाज फाइन. लकीली उस टाइम पे फ़्लाइट्स कम थी तो इवन आई वाज एबल टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. तो मेरे को ऑलमोस्ट लग गए 20 डेज़ टू फिगर आउट कि अब क्या होगा, कैसे करना है ये वो. एंड देन बीच बीच में फ़्लाइट्स भी थी तो को भी बहुत केन रहता है कि क्या हुआ था. तो आई वाज टेलिंग, तो इट्स रिफ्रेशिंग माई incident again and again, which was again not so easy, but ठीक है. For me, that flight incident became this tiny when I heard about my father-in-law, and I was absolutely fine. जून से पूरा बहुत अच्छा जा रहा था. जून 1 से लेके जून 28 तक, 27 तक, जून 27 तक सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था. I was taking care of myself, I was chanting, I was working out, I worked on my stress, I worked on my sleep, I was flying, everything was back on track. On 27th of June, I had a flight and a layover. I had Bombay layover, and there was a known crew member who texted me that my family is traveling, my cousin is also traveling, so please take care of them. क्योंकि उस दिन सैलरी आई थी तो हम लोग बहुत खुश थे और हमने सबने एयरपोर्ट पे माचा पिया, घूमे, बर्गर किंग खाया, सब कुछ मज़े में चल रहा था. फ़्लाइट पे गए. फ़्लाइट पे जाते ही मैंने उस दिन 7 लोगों को क्रोसिन दी. Somebody had headache, somebody had fever, somebody had some pain. So I was administering crocin to a lot of people. Literally मैं वो पत्ता ही दे रही थी कि ले जाओ तुम, ले जाओ. ठीक है. उसके बाद मैंने 4 अवोमाइन दी. अवोमाइन इज़ अ वॉमिट कंट्रोल टैबलेट्स. आपको फ़्लाइट पे लेनी चाहिए जिनको मोशन सिकनेस वगैरह होता है तो वो ले लेते हैं. तो मैंने उस दिन 5 अवोमाइन दी और 7 क्रोसिन दी. एंड आई वाज लाइक चल क्या रहा है भाई, मतलब मैं सुबह से सबको दवाइयाँ देने आई हूँ इस फ्लाइट पे. एंड जस्ट 2 सेक्टर्स में मैंने, ऑल्दो इट वाज अ वेरी लॉन्ग सेक्टर, बट 2 सेक्टर में मैंने इतने लोगों को दवाइयाँ खिलाई है. तो इट्स नॉट अ गुड थिंग. आई माई सेल्फ हेट टेकिंग मेडिसिन. सो ऐसा नहीं है कि मुझे निकालने में दिक्कत आ रही थी, बट मुझे वो फीलिंग बहुत गंदी आ रही थी कि मुझे इतनी दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं लोग, इतनी दवाइयाँ क्यों देनी पड़ रही हैं लोगों को. जब हम लैंड होने वाले थे तो 200 का लोड था. एंड उस फ्लाइट में remember the crew who said that my cousin is traveling. My crew came and she said, पूजा आपकी जो फ्रेंड की cousin है, she needs Avomine. And I was like, again somebody needs a tablet. And I was like ठीक है चलो. Avomine वहीं पे पड़ी थी, बाहर ही रखी थी क्योंकि इतने लोग यूज़ कर रहे थे तो एक कंपार्टमेंट होता है उसमें रखी थी. मैंने कहा लो लेके जाओ और दे दो. मेरी क्रू गई उसको देने एंड शी केम बैक एंड शी इज़ लाइक पूजा शी कैन नॉट ब्रीथ. एंड आई वाज लाइक व्हाट, वी आर जस्ट लैंडिंग नाउ, वी आर जस्ट अबाउट टू टच डाउन. आई वेंट टू सी हर. आई सॉ हर, शी वॉज लूजिंग हर सेंसेस. लाइक शी टोल्ड मी दैट शी इज़ नॉट एबल टू फील इवन माई टच. So I asked them to page and I was checking her TPR, like पल्स चेक कर रही थी मैं, टेम्परेचर चेक कर रही थी. हर मदर टोल्ड मी दैट शी हैड अ फीवर, सो शी इज़ ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन. वरना मैं क्रोसिन भी देती, मेरे पास क्रोसिन खुला ही पड़ा था. बट वो ऑलरेडी फीवर का मेडिसिन ले चुके थे तो मैंने उनको सिर्फ अवोमाइन दिया. पल्स वॉज वेरी फुल एंड बाउंडिंग पल्स, फास्ट पल्स था एकदम, फट 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 फड़फड़ा रहा था पल्स एकदम.
हमने डॉक्टर को पेश किया। मैंने उसके फीट रब किए, उसकी मम्मी वॉज ऑन अदर साइड, सो आई टोल्ड हर मॉम ऑल्सो टू रब हर फीट ऑन द अदर साइड एंड आई वॉज रबिंग इट ऑन दिस साइड, but she was losing it all. So then I just asked my crew to bring the oxygen bottle and I administered her oxygen. I had to do it all because there was no doctor on board. We had 200 people on board but we had no doctor. It is strange. बहुत मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या हुआ तो इसमें क्या हुआ, लेकिन बहुत रेयर केस सिनेरियो होता है कि फ़्लाइट फुल है और एक डॉक्टर नहीं है। एक ना एक डॉक्टर तो होते ही होते हैं। तो लोगों की फ़्लाइट में एक डॉक्टर नहीं था एंड इट वाज हॉरिफाइंग। मैंने उसको ऑक्सीजन बॉटल एडमिनिस्टर किया एंड देन कैप्टन सेड दैट वी आर लैंडिंग इन 12 minutes। आई वाज लाइक डूड। तो मैंने वो ऑक्सीजन मास्क, उसमें एक बैंड होता है तो वो ऐसे बांध के और ऑक्सीजन बॉटल नीचे रख के एंड देन भी सिक्योर करके हमने लैंडिंग की। लैंडिंग में आई मेड श्योर कि वो पहले डीप्लेन करे। तो पहले डीप्लेन करने के लिए आई आस्क्ड फॉर अ व्हील चेयर। गुड डिसीजन टेकन एंड शी वॉज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। शी वॉज ब्रीदिंग वेल। My God, if you would have seen her previous situation and this situation, it was 90% better. So I'm glad. मैं होटल पहुंची। It was 2:30 midnight. I called my husband. No, actually he called me up. He has this habit of calling me and asking how is the flight, how was the flight. So I tell him कि आज अच्छी नहीं थी, आज ये थी वो थी। उस दिन मैंने कहा उनको कि आज ऐसा ऐसा हुआ, मैंने इतने लोगों को सीन दिया, इतने लोगों को अवमाइन दिया और फिर उसके बाद में मैंने ऑक्सीजन देना पड़ा, किसी की लाइफ बचाई मैंने। आई वॉज फीलिंग प्राउड and I was so happy, but the entire day was very exhausting for me. And he was also working, so we decided that it's too late right now, so we will sleep and next morning he can do his work and even I have a flight, so it's better to sleep right now. So 2:30 he kept the call. At 3 o'clock he gives me a call back, my husband, and he starts weeping like पापा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। And I was like no way, no way। हमने अभी अभी सब कुछ देखा है, अभी अभी सब कुछ किया है और फिर से तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब जो तबीयत ख़राब हुई थी वो बहुत सीवियर हो गई थी। He was kept on 100% oxygen, which was unbelievable. I was in Bombay. I was helpless. I was helpless. तो गेट रेडी भी करना है ना, सिर्फ बातें ही करनी है। This lipstick I love the shade. It's in coral. Again, my husband had to rush all the way. I told him not to panic, travel safe, all of that. And when he reached there, he told me that he was kept on 100% oxygen. Someone who thinks about every situation कि भगवान की मर्ज़ी के बिना आपका, बोलते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है जिसके वजह से आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रही होती हैं। सो मे बी पापा को ऐसे होने वाला था एंड आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू टेक इट पॉजिटिवली। इसीलिए भगवान ने मुझे वो सिनेरियो में डाला। आई माई सेल्फ एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन इन अ फ्लाइट एंड देन पापा के साथ ऐसा हो गया। या सो ये सब चीज़ें हो गई एंड देन वही हुआ। मैं फ़्लाइट से आई, फिर मैं वहाँ गई उन्हें देखने। दिस टाइम ही वॉज केप्ट इन हॉस्पिटल फॉर 4 days एंड
ही इज़ द क्लोजेस्ट पर्सन आई हैव इन माई लाइफ। बहुत कम टाइम में इतना अटैचमेंट किसी से होना, बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ़ मी लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ बेबी। एंड मैं कुछ भी बोलती हूँ तो ही रिमेंबर्स, ही गेट्स दैट टू मी। मतलब इतना प्यार मुझे किसी ने भी नहीं किया है। सो I cannot see him in that situation. For me, it was very traumatizing. ये हुआ जून 28-29। आई पूरा उनके उसी में गया है, उनके ट्रीटमेंट में गया है, उनके मेडिसिन्स, डाइट, रेस्ट, ऑल ऑफ दिस हैज़ हैपेंड। एंड मेरी फ़्लाइट भी थी बैक टू बैक, सो आई वाज डूइंग माई फ़्लाइट एज़ वेल। एंड एवरी डे उस दिन के बाद आई बीन प्रेइंग कि भगवान अब ऐसा दिन कभी ना लाना, कभी मत लाना। इज़ ऑलवेज अ लाइट ऑन द अदर साइड, सो वी ऑल आर keeping our hopes high. We're very positive. Finally, I had the courage today to pick up this camera and come here and tell everything. And I genuinely felt like once and more than 2 months disappearing from my channel is a big thing, at least for me. So people who are watching me like continuously and were following me, subscribing to my channel, मुझे लगता है कि I need to be loyal to them. So yeah, दिस इज़ माई लाइफ अपडेट। मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे कोई परफेक्ट सेटअप नहीं चाहिए, मुझे कोई परफेक्ट थॉट नहीं चाहिए, मुझे कोई परफेक्ट एस्थेटिक व्लॉग नहीं बनाना है। मुझे बस यहाँ आके अपना दिल खोल के सब कुछ शेयर करना है। वॉज इट, दिस इज़ वॉट वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ। एंड सब कुछ ठीक है, मतलब चोट लगना, ये करना, वो करना, my पेरेंट्स को कुछ हो जाना इज़ unacceptable and it's heart wrenching. I don't know how will this channel grow, how long will it take, but I just wanted to make a fresh start and give it a shot. So, if you're new to my channel, hi, my name is Akruti and this is my fresh start. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ साइन टू दोज पीपल हु आर थिंकिंग कि हाँ परफेक्ट दिन आएगा, जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब हम कैमरा उठा के ब्लॉग बनाएंगे। नहीं, आप आज ही शुरू कर दीजिए, अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी किया है, ठीक है। एंड आई वुड लव टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू गाइज वुड लाइक मी टू मेक। आई वुड लव टू मेक दैट वीडियोज़ and I will see you in the next one. Thank you so much, so much for watching this entire video and see you soon. Bye.